Chapter number 9, General Equilibrium of Economy by ISLM curve. The three objective of chapter number 9 is concept of labor market equilibrium, concept of goods market equilibrium, and concept of asset market equilibrium. We have drive FE curve for labor market equilibrium, ICE curve for goods market equilibrium, and LM curve for asset market equilibrium. Then we have understand general equilibrium of economy. General equilibrium of economy means the point at which all three curves simultaneously intersect each other. The intersection of FE, IS, and LM curve shows general equilibrium of economy. Then we have understand response of general equilibrium due to changes in labor market, asset market, or goods market. Monetary expansion, monetary neutrality, crowding in, crowding out. Our today class topic is derivation of aggregate demand curve. Equation of aggregate demand curve is y equals to c plus I plus g plus nx. Total spending equals to total supply. Step number 1 is two diagrams. Na? So for derivation of aggregate demand curve, we have to plot two diagrams. Diagram number A shows general equilibrium of economy in short run. Y-axis of diagram number A, real interest rate. X-axis, total output, income or spending. Y is real GDP. LM curve, positively sloped. Asset market equilibrium. ICE curve, downward slope. Goods market equilibrium. Point A shows general equilibrium of economy, intersection of FE and IS curve. Real interest rate, let's suppose at equilibrium 5% real interest rate, and equilibrium output is 4,000 billion. Diagram number B, y-axis price level and x-axis output. Initial point is A. Let's suppose at A point output is 4 billion, and at 4 point price level is 5. So 5 is price level and 5 is real interest rate at diagram number A. So derivation of aggregate demand curve, first step is two diagram. Diagram number 1 shows general equilibrium of economy. In diagram number 2, y-axis price level of economy means GDP deflator or consumer price index. Both indexes shows the general price level of economy. Differences we have understand in chapter number 2. Second step is, let's suppose price level increase. Price level increase in diagram number B. So diagram number B, price level increase. Price level increase means initial price is 5%. So price level increase 5 to 8%. The price level increase, price level is factor of asset market. More sensitive market is asset market or LM curve. Increase in price level leads to increase in money demand. Money demand curve shift rightward, and real interest rate increase in asset market. Increase in real interest rate in asset market means LM curve shift left to up. To price level increase, LM curve shift left to up. To in diagram number A, LM curve shift left to up due to increase in money demand. Price level is a factor of money demand, price level increase, and relationship between price level and money demand is proportional. If 10% increase in price level leads to 10% increase in money demand. The price level increase in diagram number B leads to increase in money demand, or money demand increase means LM curve shift left to up. In diagram number A, new equilibrium restore at point B. The point B means now output is less than 4,000
billion. The new equilibrium output at 7% real interest rate is 3 billion. Output or Y decrease due to increase in price level. The initial price level is 5. At 5% price level, point B, है ना? तो point B output is 3%. तो first point is A. At A price level 5, output is 4. और B point, at B point our price level is 8%, but output is 3%. Again, at A point, IS equals to LM. Goods market, asset market, and labor market. All three markets intersect at A point. Now, in B point, same IS and LM intersection. So A point shows general equilibrium of economy, and B point shows general equilibrium of economy. Aggregate demand equals to aggregate supply. If we join A point to B point, we have downward slope curve. So this downward slope curve shows A point, labor market, asset market, and goods market intersection. At point B, goods market, asset market, and labor market intersection. To aggregate demand curve at each point of aggregate demand curve, all three markets simultaneously at equilibrium point. To aggregate demand curve, always downward slope. Derivation of aggregate demand curve, first step, we have plot two diagrams. Step number 2, assume price level increase. Increase in price level leads to increase in money demand, LM curve shift leftward, and new equilibrium point at B, है ना? तो aggregate demand curve downward sloping. Yes. Any question? आपने कोई क्वेश्चन करना है इस डेरिवेशन में? सर स्टेप 2 थोड़ा फिर से बता सकते हैं प्लीज, ये नेट नहीं चल रहा है। स्टेप नंबर 2, हमने अज्यूम किया कि प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हो गया. इनिशियल इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट ए ना, पॉइंट 8 पे प्राइस लेवल कितना था आपका? 5% था, है ना? इंटरेस्ट रेट आपका 5% था, आउटपुट आपका कितना था? 4 बिलियन. तो स्टेप नंबर 2, हमने अज्यूम किया प्राइस लेवल इंक्रीज. तो प्राइस लेवल इंक्रीज होने से जो इम्पैक्ट करता है, सबसे पहले कौन सी मार्केट इम्पैक्ट करती है? आपकी एसेट मार्केट और एलएम कर्व ना. तो एलएम कर्व सबसे क्विक रिस्पॉन्स करती है. ये हमने लास्ट वीक हमने अंडरस्टैंड किया था. कोई भी इकोनॉमी के अंदर फैक्टर आपको चेंज हो जाए, जो सबसे क्विक जो रिस्पॉन्स होता है वो किसका होता है? एसेट मार्केट का होता है. ठीक है. तो प्राइस लेवल इंक्रीज होने से जो चैनल बनता है, वो चैनल क्या बनता है कि प्राइस लेवल इज मैन फैक्टर ऑफ मनी डिमांड, और प्राइस लेवल इज प्रोपोर्शनली रिलेटेड विद मनी डिमांड. जो प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, इससे लोग ज़्यादा अमाउंट डिमांड करेंगे, ज़्यादा मनी होल्ड करेंगे. मनी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा आपका राइट वर्ड, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से एलएम कर्व आपका क्या हो जाएगा? शिफ्ट लेफ्टवर्ड. एलएम कर्व जब आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो न्यू इक्विलिब्रियम होगा, न्यू जनरल इक्विलिब्रियम होगा, वो किस पॉइंट पर होगा? न्यू इंटरसेक्शन ऑफ आई एस एलएम कर्व. तो न्यू इंटरसेक्शन ऑफ आई एस एलएम कर्व 8 पॉइंट बी. अब बी पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट कितना है? 7% है. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम डायग्राम नंबर बी को कंप्लीट करेंगे, इनिशियल आउटपुट 4 था, 5% प्राइस लेवल पे. अब 8% प्राइस लेवल के ऊपर आउटपुट 4 नहीं है, आउटपुट कितना है आपका? 3 है. तो 8% पे अगर हम आउटपुट को लिंक करेंगे, तो अब आउटपुट आपका कितना है? 3 है. प्राइस लेवल आपका कितना है? 8. इनिशियल आप कहाँ पर थे? इस पॉइंट पे पर थे. तो ए पॉइंट पे क्या था आपके पास? जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी था, आईएस और एलएम आपका इंटरसेक्शन में था. बी पॉइंट पे भी आपके पास क्या? जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी. तो ए पॉइंट बी प्रूफ क्या कर रहा है? वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. और बी पॉइंट भी क्या शो कर रहा है आपके पास? वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स. तो ये जो डाउनवर्ड स्लोप कर्व है जो हमने ड्राइव किया ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइंट करने से, तो ये डाउनवर्ड स्लोप कर्व क्या शो कर रहा है? एट ईच पॉइंट ऑफ दिस कर्व y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स. तो इस कर्व के हर पॉइंट के ऊपर तीनों मार्केट्स इक्विलिब्रियम पर है. तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड कर्व को हम क्या कहते हैं? जनरल इक्विलिब्रियम
कर्व, तो एग्रीगेट डिमांड और कर्व ऑफ दिस इक्वेशन ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, ये था हमारे पास डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर बी that relate to aggregate demand curve is why aggregate demand curve is downward sloping। aggregate demand curve आपका डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है? तो थ्री चैनल्स हैं, तीन चैनल्स हैं जिनके जो हम एक्सप्लेन करते हैं वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, अभी हमने अंडरस्टैंड किया एग्रीगेट डिमांड कर्व का मतलब क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ठीक है, तो वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप, रीजन नंबर वन और फर्स्ट चैनल। एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? उसका जो फर्स्ट चैनल है वो क्या है आपका, रियल बैलेंसेस। रियल बैलेंसेस आप समझते हो? हमने ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन में डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ रियल बैलेंसेस। बताएगा आप में से कोई व्हाट द मीनिंग ऑफ रियल बैलेंसेस, इंक्रीज इन रियल बैलेंसेस और डिक्रीज इन रियल बैलेंसेस? हमने कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन में एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें अपने मेन्यू कॉस्ट भी पढ़ा था, शू लेदर कॉस्ट भी पढ़ा था। देखें, चैनल नंबर वन, वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप। तो व्हेनेवर प्राइस लेवल इंक्रीज, जब भी प्राइसेस किसी चीज़ की इंक्रीज होती हैं, किसी भी चीज़ की, ठीक है, प्राइस लेवल इंक्रीज मीन इन्फ्लेशन इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। इकोनॉमिक्स में हम हर वेरिएबल को रियल टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। आपने रियल इनकम पढ़ा, रियल इनकम का मतलब क्या है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, है ना। आपने रियल वेजेस पढ़ा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, फर्म डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज इन लेबर और डिक्रीज इन लेबर। तो रियल वेजेस का मतलब क्या है, नॉमिनल वेजेस डिवाइड बाय पी। फिर आपने रियल वेल्थ पढ़ा, तो रियल वेल्थ का मतलब क्या है, नॉम वेल्थ डिवाइड बाय प्राइस लेवल। इसी तरह हर वेरिएबल को हम रियल टर्म के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। तो किसी भी वेरिएबल को रियल टर्म में एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है कि हम उस वेरिएबल को प्राइस लेवल से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर प्राइस लेवल आपका डिनोमिनेटर है और प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, लाइक हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें, ये आपका एन जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी आपने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस किया था। नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर से। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या चीज़ है, ये प्राइस लेवल ही तो है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी को हम रियल जीडीपी से डिवाइड करते हैं तो हमारे, नॉमिनल जीडीपी को हम जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रियल जीडीपी और वाई। ठीक है, देखें, जब भी प्राइस लेवल इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके रियल जीडीपी क्या हो रही है, आपके पास डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी प्राइस लेवल इंक्रीज होगा लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखें, आपकी सैलरी वही है लेकिन प्राइस लेवल इंक्रीज होने से आपकी जो रियल इनकम है, आपकी जो परचेजिंग पावर है, आपकी जो कैपेसिटी टू परचेज क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स, वो आपकी क्या हो जाती है, वो फॉल हो जाती है। तो प्राइस लेवल इंक्रीज होने से रियल वेजेस डिक्रीज हो जाते हैं, रियल वेल्थ आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, रियल इनकम क्या होती है आपके पास, डिक्रीज होती है। तो रियल बैलेंसेस का मतलब क्या होता है कि जब भी प्राइस लेवल इंक्रीज होगा हमारे सारे जो वेरिएबल्स हैं रियल टर्म में वो सब डिक्रीज हो जाएंगे, हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो प्राइस लेवल इंक्रीज, डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, डिक्रीज इन रियल बैलेंसेस, और आउटपुट आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज। आपकी जो स्पेंडिंग पावर है, कंजप्शन आपकी डिक्रीज हो जाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीज हो जाती है। जब रियल बैलेंसेस कम होंगे, जब रियल वेल्थ कम होगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट क्या होगी, आपकी कम होगी। तो जो फर्स्ट जो चैनल है रियल बैलेंसेस, इसका जो ट्रू एक्सप्लेनेशन है वो क्या आपके पास, उसको हम रिलेट करते हैं कंजम्पशन के साथ।
तो जब भी प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, परचेजिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज, रियल वेजेस डिक्रीज। जब आपके रियल वेजेस डिक्रीज होंगे तो कंजम्पशन क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। कंजप्शन कम होने का मतलब क्या है, अब ये जो आपका वाई है, वाई में 60% कंजप्शन होता है, तो कंजप्शन डिक्रीज मीन्स रियल जीडीपी डिक्रीज। तो वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप का जो फर्स्ट चैनल है वो क्या है, डिक्रीज इन रियल बैलेंसेस। और रियल बैलेंसेस डिक्रीज कब होते हैं, जब प्राइस लेवल आपका क्या होता है, राइज होता है। तो प्राइस लेवल इंक्रीज, रियल balances डिक्रीज, purchasing power of individual decrease, real wages decrease. This means now ability to purchase goods and services decrease। तो कंजप्शन हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। सेकंड चैनल और सेकंड रीजन ऑफ वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप इज इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट। देखें, रियल इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशन है डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व से। ठीक है, देखिए हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने डिस्कस किया था डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने चैप्टर 4 में हमने अंडरस्टैंड किया था। वहां पर हमने अंडरस्टैंड किया था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वहां पर हमने सबसे पहले जो डिसीजन अंडरस्टैंड किया था वो डिसीजन था फर्म डिसीजन मेकिंग और डिज़ायर कैपिटल स्टॉक। एक फर्म अपनी स्टॉक के अंदर मशीन की कितनी क्वांटिटी होल्ड करती है, डिज़ायर मशीनरी और डिज़ायर कैपिटल स्टॉक। डिज़ायर कैपिटल स्टॉक का जो कॉस्ट था वो क्या था, पी के मल्टीप्लाई बाय आर प्लस डी। आर इज रियल इंटरेस्ट रेट, है ना। तो रियल इंटरेस्ट रेट जब भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन रियल इंटरेस्ट रेट, तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज, यूसी इंक्रीज। जब यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा तो हमारा जो डिजायर कैपिटल स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा तो लोग क्या करेंगे, मशीनरी कम परचेज करेंगे। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का मतलब क्या, रिटर्न्स ऑन सेविंग इंक्रीज। ये हम सेविंग कर्व में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज। अब जो मशीन हम परचेज करेंगे उस पर कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, कम मशीनों को परचेज करेंगे, डिज़ायर कैपिटल स्टॉक डिक्रीज। और जब ये डिज़ायर कैपिटल स्टॉक डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री के अंदर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सेकेंड चैनल ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आउटपुट रियल जीडीपी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज लीड्स टू इंक्रीज इन यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दे डिक्रीज डिजायर कैपिटल स्टॉक एंड अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीज। तो डायरेक्ट रिलेशन होता है कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 के अंदर। वाई, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर कैपिटल स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सेकंड चैनल ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व इज रियल इंटरेस्ट रेट, और रियल इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली रिलेट विद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब डिक्रीज होगी इसका मतलब क्या होगा, वाई डिक्रीज। तो प्राइस लेवल इंक्रीज, वाई डिक्रीज, सेकंड चैनल ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड चैनल की तरफ। तो थर्ड चैनल ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व इज फॉरेन फैक्टर। इस इक्वेशन में फॉरेन फैक्टर क्या चीज़ है, एनएक्स। फॉरेन फैक्टर इज एनएक्स। देखें एनएक्स किस तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व के साथ रिलेट कर रहा होता है। देखिए एनएक्स का मतलब क्या है, हमारे पास एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एनएक्स ट्रेड बैलेंस हम चैप्टर 5 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, कॉन्सेप्ट्स थ्योरीज रिलेटेड विद इंपोर्ट्स, एक्सचेंज रेट। तो एनएक्स मीन्स ट्रेड बैलेंसेस। एनएक्स अगर पॉजिटिव होगा, एनएक्स अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या होगा कि आपकी एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इंपोर्ट्स हैं। तो जब एनएक्स आपका पॉजिटिव होगा तो आउटपुट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। एनएक्स जब नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या होगा, इंपोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखें फॉरेन फैक्टर से किस तरह रिलेट करते हैं हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को। देखें जब भी हमारी कंट्री के अंदर
प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, यानी कि डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ती हैं। हमने क्लास में चैप्टर नंबर 3 में एक केस स्टडी हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गई हैं। उनमें से अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ इंडस्ट्रीज़ का आप नाम लें जो अब शट डाउन हो गई हैं, ठीक है। उनमें से एक इंडस्ट्री का हमने जिक्र भी किया था, और उसके कुछ और रूट्स की तरफ भी हम गए थे कि आपकी जो प्लास्टिक की जो चप्पल की पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, तो एक ज़माने में पाकिस्तान में आप हर घर में देखेंगे हवाई चप्पल, नायलॉन की चप्पल पाकिस्तानी चलती थी, ठीक है। वो इंडस्ट्री बिल्कुल आपके पास ना होने के बराबर है। आप मार्केट में जाते हो, जो चप्पल आप सैंडल परचेज करते हो रूटीन डेली यूज़ के लिए, वो कौन सी होती है? वो आप चाइना की चप्पल आप परचेज करते हो, है ना। तो एक ज़माने में चाइना की चप्पल नहीं होती थी, वो पाकिस्तानी चप्पल होती थी, और पाकिस्तान उसे एक्सपोर्ट भी करता था। वो अब कहीं आपको नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? वो सारी इंडस्ट्री क्या हो गई आपकी? ख़त्म हो गई। उसके ख़त्म होने से हमारे आउटपुट पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आया। वो जो इम्पैक्ट आया है, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक कोई फैक्ट्री बंद हो रही है, तो इसका मतलब उस फैक्ट्री की सेल्स नहीं है। उसका मतलब है कि उस फैक्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे थे, उनकी इनकम भी क्या हो गई है आपकी? कम हो गई है। अब उनकी इनकम का रिलेट हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में अंडरस्टैंड किया था कि हर शख्स की जो स्पेंडिंग होती है वो किसी और की क्या होती है? इनकम होती है। तो एक फैक्ट्री और एक इंडस्ट्री के बंद होने का मतलब क्या है? आपके जो आउटपुट है उसके ऊपर मल्टीप्लायर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। देखें कि इंडस्ट्री क्यों क्लैप्स हुई। इसकी क्लैप्स होने की जो मेन रीज़न है वो आपके पास क्या है? वो रीज़न ये है कि उसकी जो प्राइसेस थी, अगर आप नायलॉन की चप्पल बनाते हो आज भी, तो जो आपको कॉस्ट पड़ती है और जिस प्राइस पे आप मार्केट में सेल करोगे, उससे कम प्राइस में चाइनीज़ प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो लोग आपसे परचेज नहीं करेंगे। इसलिए जो फैक्ट्रीज थी उन्होंने इस चप्पल को बनाना बंद कर दिया, है ना। उसके रीजंस क्या थे? कि पाकिस्तान के अंदर उस गुड की प्राइसेस बढ़ गई, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को कोई सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की, उनको कोई इलेक्ट्रिसिटी में कोई बेनिफिट नहीं दिया। आपने देखा होगा चाइना बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, वहाँ पर वाटर सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेसिक जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं, ये गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करे तो उस कंट्री का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो क्या करता है? वो बूम करता है। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। हर इंडस्ट्री से आप पूछो उनको प्रॉब्लम क्या है? कि बिजली की बहुत ज़्यादा प्राइस है, हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हम इंटरनेशनली तो क्या डोमेस्टिक मार्केट में मुकाबला नहीं कर पाते। तो चाइना के अंदर आपके पास क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में लेदर इंडस्ट्री के बहुत बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स ने पिछले महीने अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी, और उसने रीज़न क्या बताया? उसने बताया कि पिछले साल मैंने 1 करोड़ रुपए का पानी खरीदा है, क्योंकि लेदर की प्रोसेसिंग में पानी की जो आपके पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना। तो उसने कहा मैं 1 करोड़ रुपए का पानी खरीदूंगा तो मैं लेदर बना के मैं बेचूंगा क्या? अब पानी फ्री प्रोवाइड करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है ना। तो डोमेस्टिक जब प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अब इंपोर्टेड गुड्स की जो कंपटीशन है वो क्या हो जाएगी आपके पास? वो इजी हो जाएगी। तो लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को परचेज नहीं करेंगे, लोग परचेज करेंगे इंपोर्टेड गुड्स को परचेज करेंगे, क्योंकि इंपोर्टेड गुड की प्राइसेस क्या है? कम है। तो इंपोर्टेड गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इंपोर्टेड गुड की डिमांड इंक्रीज होगी तो जो आपकी मार्केट है उसके अंदर डोमेस्टिक गुड्स की क्वांटिटी कम होगी और इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी कि आपकी इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। इंपोर्ट्स इंक्रीज होने से एनएक्स आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एनएक्स नेगेटिव का मतलब क्या है? अब आपका जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है? आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये था फॉरेन फैक्टर को किस तरह हम चैनलाइज करते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो एनएक्स नेगेटिव होने का मतलब क्या है? कि आउटपुट आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। एनएक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या? आउटपुट इंक्रीज। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप। वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या है? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट रीजन इज रियल बैलेंसेस, सेकेंड वन इज रियल इंटरेस्ट रेट। तो रियल बैलेंसेस को हम रिलेट करते हैं कंजप्शन से, चैनल नंबर 1। रियल इंटरेस्ट रेट को हम रिलेट करते हैं इन्वेस्टमेंट से, चैनल नंबर 2। और थर्ड चैनल इज फॉरेन फैक्टर, ठीक है। तो अब बताएं कोई क्वेश्चन आपने करना है? वो एग्रीगेट डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोप, इन तीनों चैनल्स को मैं कोई क्वेश्चन आपके पास है? यस स्टूडेंट्स।
इस वक्त कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं? सिर्फ 11 स्टूडेंट्स रह गए हैं। देखें, आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम है क्लास के अंदर, और मज़े की बात ये है कि आप रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते हो। सर वो सेकंड वाला बता दीजिए। हैं? सेकंड वाला पॉइंट। हाँ बिल्कुल। एक मिनट में स्टूडेंट्स देख लूँ इस वक्त कितने हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी हमारी क्लास कहाँ पर थे स्टूडेंट्स? ठीक है, सिर्फ 13 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। 20 स्टूडेंट का हमारा आपका क्या है, हमारा सेशन है पूरा। 20 स्टूडेंट्स क्विज में तो फ़ौरन कहीं ना कहीं से आप लोग आ जाते हो, लेकिन क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स होते हो। ठीक है, तो सेकंड रीज़न इज रियल बैलेंस, सर थर्ड अपना वाला। रियल इंटरेस्ट रेट ना। थर्ड वन फॉरेन फैक्टर। नहीं, सेकंड ही सेकंड। सेकंड आपका रियल इंटरेस्ट रेट ना। तो रियल इंटरेस्ट रेट का ये चैनल हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। रियल इंटरेस्ट रेट जब भी इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था आपका, प्राइस ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय आर प्लस डी। तो ये आपका रियल इंटरेस्ट रेट है। बेनिफिट ऑफ कैपिटल क्या था आपका, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। कोई मशीन परचेज करते हो तो वो कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, एमपी के, बेनिफिट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका ये था, यूसी। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है कि अब जो डिजायर कैपिटल स्टॉक है, डिजायर कैपिटल स्टॉक हमने अंडरस्टैंड किया था जहां पर कॉस्ट और बेनिफिट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एमपी के इक्वल्स टू यूसी इज डिजायर कैपिटल स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा तो हमारा जो डिजायर कैपिटल स्टॉक है वो क्या होगा, कम होगा। डिजायर कैपिटल स्टॉक कम होने का मतलब क्या है कि जो फर्म्स हैं वो कम मशीनों को परचेज करेंगे। जब मशीनें कम होंगी तो आउटपुट भी आपका कम होता है। जो मशीनें कम होंगी इसका मतलब क्या है कि आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट क्या हुई है, कम हुई है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी जब डिक्रीज होगी तो आउटपुट आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, आउटपुट डिक्रीज। ये था आपका सेकंड चैनल। तो फर्स्ट चैनल से हम कंजप्शन को रिलेट करते हैं, सेकंड चैनल इन्वेस्टमेंट, थर्ड चैनल नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व का जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। सर फाइनल की टॉपिक्स बताएं अभी आपने। ये फाइनली टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आप फिर से एक बार बता सकते क्या कह रहे हो, मिड टर्म बहुत ईजी था। हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, फाइनल के टॉपिक्स आप फिर से एक दफ़ा बता सकते हैं अब प्लीज़? फिर से यही काम करता रहूँ मैं? नहीं अभी नहीं, एंड में जब आप क्लास एड कर रहे एंड में अगली क्लास में आना पूछना, ठीक है? नेक्स्ट वीक की क्लास में आओगे ना? हैं। ओके सर। जो नेक्स्ट वीक आपकी क्लास होगी आप उसमें आना और आप पूछ लेना। बाइग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। लास्ट टॉपिक ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ शिफ्टिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व, शिफ्ट राइटवर्ड, और एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है, देखें बहुत सिंपल सा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं और पहले हम कवर कर चुके हैं। एनी फैक्टर ऑफ आईएस कर्व और एलएम कर्व दैट शिफ्ट आईएस और एलएम राइट, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। Any factor of IS or LM curve shift ISLM लेफ्टवर्ड, एग्री डिमांड आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट राइटवर्ड। ठीक है, यानी कि ISLM कर्व की वजह से अगर आउटपुट आपका इंक्रीज हो रहा है ना, LM अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगा दिस मीन्स आउटपुट इंक्रीज। LM एसेट मार्केट ना, तो एसेट मार्केट में कोई भी फैक्टर जिससे
एलएम कर्व आपका शिफ्ट हो जाए राइटवर्ड, तो न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पर आ रहा है, बी पॉइंट पे, तो एलएम कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट राइटवर्ड। ठीक है, इसी तरह एनी फैक्टर ऑफ आइस कर्व अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इससे भी आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। तो एनी फैक्टर ऑफ गुड्स मार्केट that shift ice curve rightward, or any factor of asset market that shift LM curve rightward. This means aggregate demand curve shift rightward. ठीक है, और any factor of LM curve और IS curve that shift LM और IS leftward, यानी कि IS curve आपका leftward shift हो जाए, this means output decrease, aggregate demand curve क्या होगा आपका, shift left to down. Any factor of asset market that shift LM curve leftward, this means output decrease, और ये डिमांड कर्व आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट लेफ्ट टू डाउन। तो शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व इज वेरी easy if you have understand previous topics of chapter number 9। ठीक है, अगर आपने ISLM कर्व के सारे टॉपिक्स जो हम लास्ट वीक हम पढ़ चुके हैं, एडवर्स सप्लाई शॉक, बेनिफिट सप्लाई शॉक, मॉनेटरी एक्सपेंशन, मनी न्यूट्रलिटी, मनी नॉन न्यूट्रलिटी, तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि फैक्टर्स ऑफ आइस कर्व, फैक्टर्स ऑफ एलएम कर्व। तो समरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व टॉपिक इज concept of aggregate demand curve. Aggregate demand curve shows aggregate economic activity of economy. No? Equation of aggregate demand curve y is equals to c plus I plus g plus nx. This equation is aggregate demand equals to aggregate supply equilibrium of economy. Derivation of aggregate demand curve, how to drive aggregate demand curve। एग्रीगेट डिमांड कर्व को हम ड्राइव करते हैं ISLM मॉडल से, दो डायग्राम्स हमने बनाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्राइव किया। एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड आउटपुट, प्राइस लेवल इंक्रीज आउटपुट डिक्रीज, प्राइस लेवल डिक्रीज आउटपुट increase. Second topic of aggregate demand curve is why aggregate demand curve downward slope. So there are three channels which aggregate demand curve downward slope: real balances, real interest rate, and foreign factor. Third topic of aggregate demand curve is shifting of aggregate demand curve. aggregate demand curve shift rightward का मतलब क्या होता है कि अब आपका आउटपुट इंक्रीज हो गया, लेफ्टवर्ड का मतलब क्या होता है, आउटपुट डिक्रीज। तो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व डिपेंड कर रही होती है इंटरसेक्शन ऑफ ISLM एंड FE कर्व। तो एनी फैक्टर दैट इंक्रीज आउटपुट इन ISLM मॉडल, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड कर्व डेफिनेटली राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो एनी फैक्टर ऑफ ISLM मॉडल है ना, दे डिक्रीज आउटपुट का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व की टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, और वहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया था कि एग्रीगेट डिमांड कर्व तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है, बट एग्रीगेट सप्लाई कर्व में हमने तीन कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होता है आपका, वो हमेशा क्या होता है आपका, वर्टिकल शेप होता है, और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का मतलब क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो वाई लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस वर्टिकल शेप का आंसर आपको चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने दिया था कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा वर्टिकल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, फिर हमने चैप्टर 8 में हमने अंडरस्टैंड किया था कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक क्लासिकल है, एक आपका क्या कीनेसियन है। क्लासिकल्स क्या कहते हैं कि शॉर्ट रन जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हमेशा आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शेप होता है, यानी कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल क्यों होता है, क्योंकि क्लासिकल्स क्या कहते हैं कि प्राइसेस आपकी क्या होती हैं, आपकी शॉर्ट रन के अंदर क्विकली मूव करती हैं टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट रन के अंदर इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम पर होती है। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का मतलब क्या है आपका, ऑलवेज
हॉरिजॉन्टल शेप, इसकी रीज़न क्या है कि इन शॉर्ट रन प्राइसेस आपकी क्या है, शॉर्ट रन में कांस्टेंट होती हैं। तो प्राइसेस अगर आपकी कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि सप्लाई तो इंक्रीज हो रही है, तो शॉर्ट रन के लिए सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल शेप, लॉन्ग रन के लिए सप्लाई कर्व वर्टिकल शेप। ठीक है। फिर आपने अंडरस्टैंड किया कि शॉर्ट रन के लिए सप्लाई कर्व आपका जो हॉरिजॉन्टल होता है, इसे मिसपरसेप्शन थ्योरी ने इसे रिजेक्ट किया, और जो न्यू कीनीजियन इकोनॉमिस्ट थे और पोस्ट कीनीजियन इकोनॉमिस्ट थे, ये दोनों इस बात पे एग्री हो गए थे कि जो शॉर्ट रन का एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता, वो क्या होता है आपका पॉजिटिवली स्लोप होता है। वो पॉजिटिव स्लोप क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर जो प्राइसेस होती हैं वो चेंज होती हैं। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल क्यों होता है? अगर हम अज्यूम करेंगे प्राइसेस शॉर्ट रन में कांस्टेंट है। और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिव क्यों होता है? कि शॉर्ट रन के अंदर अनएक्सपेक्टेड थ्योरी और मिसपरसेप्शन थ्योरी हमने किया था। अब इन दोनों मॉडल्स को अगर हम कंपेयर करें, ये आईएसएलएम मॉडल है, इसमें हम एफई कर्व को इग्नोर करते हैं, क्योंकि एफई कर्व क्या होती है, लॉन्ग रन में चेंज होती है। तो शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन में हम क्या एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उन्हीं आईएसएलएम कर्व, और एफई कर्व को हम अज्यूम करते हैं कांस्टेंट। अब इसको हम कंपेयर करें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व से, तो हमें मालूम है कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो क्या चीज़ है, वो हमेशा क्या होती है आपकी डाउनवर्ड स्लोप होती है, एडी कर्व। ठीक है। और जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो हमेशा क्या होता है आपका वर्टिकल शेप होता है। और जो आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो आपका क्या है, पॉजिटिवली स्लोप है। तो एग्रीगेट डिमांड मॉडल ये आपका क्या है, ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है, ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है। ये आईएसएलएम मॉडल ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम है, ये हमारे पास क्या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों मॉडल्स में कोई फर्क नहीं है। इसे जनरल इक्विलिब्रियम को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं आईएसएलएम मॉडल, और ये आपका क्या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल। फर्क क्या है, इसके वाई एक्सिस में प्राइस लेवल है, इसके वाई एक्सिस में रियल इंटरेस्ट रेट है, दोनों के एक्स एक्सिस में क्या आपके पास आउटपुट है। ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई मॉडल से भी हम एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी और जनरल इक्विलिब्रियम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आईएसएलएम मॉडल से भी हम एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी और जनरल इक्विलिब्रियम को हम